Good morning, students. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 9. Okay, just I was busy in adjusting the mic system. Okay, the speakers. So good morning, Shushti. Please switch off your mic. Okay, Kartike. Good morning. Morning, sir. Okay, have you taken your breakfast? Have you taken your breakfast, Kartike? No, sir. अच्छा चलिए ठीक है ना ओके सो आफ्टर दिस क्लास हैव इट चलिए सो as all of you knows that currently we are discussing in our subject civics. Okay, in textbook it is titled as democratic politics. टेक्स्ट बुक में उसको क्या टाइटल दिया हुआ है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. So before we start for the today's session, yes, I would like to ask, do you people have any doubt so that we can first clear those doubts? Yes, do you people have any doubt? No, sir. किसी स्टूडेंट को कहीं कोई डाउट वगैरह है क्या? So that we will first clear those doubts. Yes, any student? Hirak Tiwari, do you have any doubt, beta? No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, good. So just a minute. Let me check. Yes, is Devyani Dhandal present right now? No. Hemant Meena, Krishna and Manasvi Ekre. Krishna Jodh and Manasvi Ekre. Are they present right now? Because on Saturday's class they were absent. Then Prathamesh Boyer. Prathamesh Boyer, are you present right now? Prithviraj Thavri. Sabri Dhote. Where is Sabri Dhote? Yes, sir, I am present. Sabri, why you was absent on Saturday's class? Sir, I went out of station on Saturday. Siddhi Khurana. Siddhi Khurana is also absent. Then who has joined with the Prathamesh Vadaskar? Prathamesh Vadaskar is present. Sir, it is Chandana Vadaskar. Okay, ठीक है. Then Pooja Vidhate, Samruddhi Harkande. Samruddhi, Yes, sir. why you was absent on Saturday's class? Sir, I went to hospital. You went to hospital. Yes, sir. And now next is Siddharth Kaur. Okay, these students were absent in Saturday's class. Okay, ठीक है. चलिए, so please beta, if you people are missing your classes, है ना? If you are missing your classes, at least you please put a message in Teachment, okay, chat box. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. So Yes, sir. you people now, no one has any doubt. So just let us start. Okay, continue from the session where we left in our last day classes. Okay, that is the Saturday class. So I think it is visible now.
Is the textbook visible? Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. If you remember, this was the last, I can say, the activity that I gave you. Okay, drawing this cartoon in your. Drawing a person. Is it clear? Okay. Chaliye. Yes, sir. So now we have worked out up to this section. यहाँ तक आप मुझे ध्यान है, the last thing that we discussed in Saturday's session was this: the final power of decision making rested with military officers and General Musharraf. Is it so? Yes, sir. Yes, sir. Ah, Yes, sir. what I think this was the last topic, or the, I can say, the last line that we have discussed. Okay, chaliye. So now is it sufficient? Size is sufficient? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now you people would be Yes, able sir. to see more clear. Chaliye. So at the same time, dear students, if you find है ना some issue with font size, okay, क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी कई बार ध्यान नहीं रहता है कि टेक्स्ट बुक का फॉन्ट साइज इतना बड़ा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे एडजस्ट करना है. इफ यू आर फेसिंग सम इशू, बोल दिया करिए, ठीक है. चलो, so there are many reasons why the Pakistan, that is rule in Pakistan under General Musharraf, should not be called a democracy. Number of reasons are there. Okay? Here we will focus only on one reason out of those many reasons. Okay? So the rulers are elected by the people in Pakistan? No, not quite. Because who was actually ruling? It was not the representative who were ruling. It were the military commanders who ruled in Pakistan. Okay, so people may have elected representatives to the national and provincial assemblies. ठीक है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने के बाद में, then after when there was change in the constitution, okay, Pakistan held the elections. Okay, परवेज मुशर्रफ के, ठीक है, जस्ट अ मिनट. सो परवेज मुशर्रफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के, सॉरी प्रेसिडेंट बनने के बाद व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, है ना, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाने के बाद में फिर क्या किया, दे हेल्ड द इलेक्शंस. पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, करवाए गए, किसके लिए, दे कंडक्टेड इलेक्शन फॉर नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. नेशनल असेंबली मतलब लोकसभा इलेक्शन जैसे हमारे यहाँ होते हैं. प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन मतलब स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन. बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वेर नॉट रियली द रूलर्स. ठीक है, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे पाकिस्तान में, दे वर नॉट रियली द रूलर्स. रूलर्स वो वास्तव में नहीं थे. क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. हेलो, ओके. Yes, sir. Yes, sir. संध्या, Sir. Yes, sir. संध्या मूलचंदानी, Yes, sir. बेटा, Yes, do sir. you know in which locality Sidak Kaur is living in Gadchandur? Yes, sir. हाँ, who speaks out?
Savri, Yes, sir. do you know where is Siddhak Kaur is living? Yes, sir. Please, is her house is nearer to you? Yes, sir. Beta, do one favor for me and for Siddhak also, है ना? If you would be able to visit her home, possible है क्या? Yes, sir. But I think she is out of station. Okay, ठीक है. So you once talk her. Actually, she continuously telling me कि there is something wrong with Teachment app in her mobile. Okay, so she is not able to attend the class. But if this would be the problem, I am right now joined with 47 students. तो तुम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? No, sir. सर उसने बताया था, No, sir. मैं सॉल्व किया ना सर उसका प्रॉब्लम. Still she is repeating with the same बहाने वाली, है Sir, ना? हाँ, sir, she messaged me. I think yesterday or today that in SHP activity what we have to do. no, She that is is doing okay. work. No, let it be, but she is supposed to attend the live class, na? And now she is responding in a way that the Teachment app is not working. So, Sabri, if you would be able to join, है ना? Sabri, Yes, sir. Yes, sir. If you would be able to visit her house, okay? So first you talk with her. If she is in Gadchandur, visit her house and try to find out what is wrong. Okay? Okay, sir. Okay. And you first seek the permission from your parents also. ठीक है? Yes, sir. पापा मम्मी से पूछ लेना कि ऐसा ऐसा थोड़ा सा काम सर ने बताया था. ज्यादा दूर तो नहीं है ना घर? No, sir. ठीक. अब पेरेंट्स को जरूर बता देना. सावरी, पेरेंट को बताने के बाद ही उसके घर जाना. ठीक है? Yes, sir. चलो. ओके, ठीक. थैंक यू. So let us continue with our topic. Well, so the power to take final decisions rested with army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. ठीक है? So हम पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने की जो गवर्नमेंट है उसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उस टाइम पीरियड में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास नहीं थी? इट वाज नॉट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. कंट्री में डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके कंट्रोल में थी? इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्मी ऑफिशियल्स एंड जनरल मुशर्रफ. Okay, and none of them were elected by the people. Okay, now this type of condition happens in many dictatorship and monarchies. ठीक है? जो dictatorships होती हैं, monarchical form of government होती है, उसमें भी same situation रहेगी. ठीक है? They formally have an elected parliament and government. कई बार होता है कि वर्ल्ड लेवल पर, है ना, नाटक करने के लिए कंट्री, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से कुछ अलग फाइनेंशियल हेल्प वगैरह लेने के लिए क्या किया जाता है? कहने मात्र को नाटक के लिए इलेक्शन होंगे. ठीक है? so they formally have an elected parliament and they have the government, but what happens? The real power is with those who are not elected. कहने को रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पार्लियामेंट होगी, एक प्रकार की गवर्नमेंट भी बन जाएगी, परंतु उस गवर्नमेंट के पास में कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. ठीक? द रियल पावर इज ऑलवेज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. ठीक?
in few countries the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. कुछ कंट्रीज की तो हालत इतनी खराब है कि कहने को उन कंट्रीज में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, परंतु वो इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से डिसीजन नहीं ले पाती। ठीक है, कोई विदेशी ताकत, कोई दूसरी बड़ी पावरफुल कंट्री उन कंट्रीज के डिसीजंस को क्या करती है, हमेशा कंट्रोल करती है। ठीक है, सो दैट इज द कंडीशन वेयर वी से दैट कि वो कंट्री क्या नहीं होगी, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। ओके, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए पीपल्स रूल। उस कंडीशन में हम उस कंट्री के रूल को क्या नहीं कहेंगे, we can't say that it is a people's rule। okay? so ये जो entire discussion हमने किया, इसमें एक फीचर डेमोक्रेसी का कौन सा आया कि which form of government, और हम डेमोक्रेसी कब कहेंगे। ठीक है, what is the first feature in a democracy? The final decision making power must rest with those elected by the people। अब इसका क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट, यानी किसके हाथों में होनी चाहिए, विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, वे सर जिन्हें, हाँ सर लाइक अभी अगर दुनिया में अगर कहीं भी डिक्टेटरशिप या फिर मिलिट्री रूल होगा तो सेम जैसे ये अभी हो रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड हुए हैं उनके पास कोई पावर ही नहीं है और दूसरे लोगों के पास पावर है, तो अभी भी ऐसा होता है क्या? यस बेटा, अभी भी ऐसा होता है। इट इज स्टिल हैपनिंग in many parts of the world where there could be a elected government। कहने को इलेक्टेड गवर्नमेंट है, परंतु देखा जाए तो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने दम पर तो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाती, उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब कोई और कंट्रोल कर रहा है का मतलब क्या है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास नहीं है, those who were elected। जिनको पीपल्स ने इलेक्ट किया, they cannot decide, someone else is deciding। okay, so when someone else is deciding and the representative can't decide, they can't take any decision, then it is not the people's rule। okay, because who are the representatives should take decision on behalf of the people of the country। representatives किसके behalf पर decision लेंगे, they take decision on behalf of the people। ठीक है, अब वही क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, अब यदि रिप्रेजेंटेटिव को डिसीजन मेकिंग का अधिकार है ही नहीं, वो कर ही नहीं पा रहे हैं, पावर तो एक्चुअल में कोई और कंट्रोल कर लेता है, तो इन दैट केस व्हाट इज दैट, उस केस में वो क्या नहीं होगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं। And so people don't have that much power or like something to protest this। बेटा पीपल हैव ऑल द पावर टू प्रोटेस्ट दिस, है ना, बट अगेन क्वेश्चन वही आता है कि क्या संध्या अपने पेरेंट्स को अलाउड करेगी दिल्ली जाकर के प्रोटेस्ट करने के लिए? No, sir। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि पीपल हैव ऑल द पावर, देश के लोगों के पास सारी पावर है ना, परंतु समस्या सिर्फ एक ही है कि देश के जो लोग हैं उनके पास इतना समय नहीं है। कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसमें उस पावर को एक्सरसाइज करने का चांस जो है वो बहुत कम मिलता है। ठीक, तो क्या होगा
कि कंट्री के जो लोग हैं वो इस प्रकार का अपोजिशन करने की पोजीशन में होते नहीं। अब इसका अपोजिशन करने का काम किसका है? तो जब कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो उसमें गवर्नमेंट यदि कहीं कोई रॉन्ग डिसीजन ले रही है, प्लीज लिसन, if the government is taking any wrong decision, then who is there to oppose it? तो वो काम किसका होता है? अपोजिशन पार्टी का। किसका होता है? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। परंतु क्या जब डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल होता है ना, तो अपोजिशन पार्टी वाले भी कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि डिक्टेटर के पास कौन सी पावर है? डंडे की पावर है ना, गोली मार दी, क्या करोगे? मिलिट्री से अटैक करवा सर मतलब वहाँ गवर्नमेंट और ये सब कुछ मनाने का मतलब ही नहीं रहा, जस्ट बस दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने सब रखा है। बस वही तो बात हुई कि गवर्नमेंट बनाने का कोई मतलब बचता ही नहीं है, बस दुनिया को दिखाने के लिए क्या कर दिया? डेमोक्रेटिक बना दिया। डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट बना दी, इलेक्शन करवा दिए। इसीलिए तो एग्जाम्पल किसका लिया? पाकिस्तान का, परवेज मुशर्रफ वाले टाइम का, है ना, ताकि दोनों चीजों का कंपेयर हमें समझ में आए कि इलेक्शन भी हुए भैया, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाई, है ना, परंतु हो क्या रहा है? इतना सब करने के बावजूद भी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास नहीं है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं है। तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, तो फिर वो क्या नहीं होगी? वो कौन से फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं। इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल लिया कि दोनों चीजों को कंपेयर किया जा सके। एक तो ये है कि भाई इलेक्शन हुए ही नहीं, अब इलेक्शन हुए ही नहीं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे ही नहीं, तो वो तो सर्टेनली क्या नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं। बट कई बार दुनिया को दिखाने के लिए, फॉर द सेक, इलेक्शंस आर कंडक्टेड, असेंबलीज आर देयर, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, मिनिस्टर भी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, परंतु बेटा देयर आर सम स्टूडेंट्स एट ए टाइम 52 पार्टिसिपेंट्स थे मेरे पास में, एंड राइट नाउ इट इज 43। ये जिसने आदत बना ली है ना कि आकर के चला जाएगा, मैं परसेंटेज वाइज एब्सेंटी लगा दूंगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू ज्वाइन इट इमीडिएटली। अभी 52 थे, सीधे 44 हो गए। 8 लोग जो हैं प्रेजेंट लगा के हरिओम कर लिए। मैं परसेंटेज वाइज अटेंडेंस चेक करूंगा, यदि लेस देन 70 रही तो आई विल मार्क इट एज एन एब्सेंट। चलिए, सो वो जो कंडीशन थी, दैट गिव्स अस द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. तो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके कंट्रोल में होगा? उन लोगों के कंट्रोल में जो those who were elected by the people, जिन्हें किसने इलेक्ट किया है? कंट्री के पीपल्स ने इलेक्ट किया है। समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। ठीक, गॉट इट? यस सर। सो चलिए, नाउ next section or the next feature is related to what? Free and fair electoral competition. Okay, now free and fair, पहले free electoral competition का मीनिंग समझो। free, ठीक है? now what is the meaning of free electoral competition? ठीक है,
just a minute, there is something wrong with this. Okay, so what is the meaning of free electoral competition or electoral competition? That is election. Electoral competition means election. Now free electoral competition मतलब कि यदि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी के अंडर में इलेक्शन हो रहे हैं तो उस कंट्री के इलेक्शन प्रोसेस को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब कहेंगे? जब इलेक्शन कैसे होंगे? फ्री। इलेक्शन फ्री का मतलब एवरी एलिजिबल कैंडिडेट, हर एलिजिबल व्यक्ति को चुनाव लड़ने की क्या होगी? परमिशन होगी, आजादी होगी। यानी कोई एक मिस्टर एक्स यदि इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, और कोई एक मिस्टर वाई वो सारी योग्यताएं रखता है जो मिस्टर एक्स के पास है, तो कंट्री का डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए, यदि मिस्टर एक्स को इलेक्शन लड़ने की परमिशन है तो मिस्टर वाई को भी इलेक्शन लड़ने की परमिशन होना चाहिए। दैट इज व्हाट फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. दिस इज व्हाट Yes, sir. दिस इज व्हाट फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, सो फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन सीधे सीधे क्या बोल रहा है कि यदि कंट्री में इलेक्शन प्रोसेस है तो उस इलेक्शन प्रोसेस में हर व्यक्ति को, एलिजिबल व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने की आजादी होना चाहिए। ठीक, देन फेयर मींस, फेयर का मतलब उस इलेक्टोरल कंपटीशन में, यानी उस इलेक्शन में एंटायर इलेक्शन प्रोसेस पूरी ईमानदारी के साथ कंडक्ट होगी। फेयरनेस का मतलब साफ सुथरा इलेक्शन। साफ सुथरा का मतलब ये नहीं है कि पोछा वगैरह फिनाइल का पोछा। साफ सुथरा से मीन्स किसी भी प्रकार का कोई गलत तरीका, अनड्यू एडवांटेज दो डिफरेंट कैंडिडेट्स के बीच में नहीं होना चाहिए। सो फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी अनड्यू एडवांटेज के सभी को उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने प्रयास जीतने का, करने का मौका होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। सो फ्री मतलब चुनाव लड़ने की पूरी आजादी, फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन दैट इज बिना किसी बेईमानी के। इज इट क्लियर? Yes, sir. अर्नव? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. फ्री एंड फेयर Yes, sir. इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी अगला जो फीचर है हमारा डेमोक्रेसी का, वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। यस वेदांत, वेदांत एंड गौरव, switch on your videos. I would like to see your face. आप दोनों को मैं देखना चाहता हूं, वीडियो ऑन करो। ओके, यू आर वेदांत, ठीक है। वेयर इज गौरव टिकट? गौरव, ओके, so this is Gaurav. Okay, you can switch off now. So here we are having the examples from two different countries of the world. Okay, so one is related to the free competition and the second example would be related to the fair electoral competition. Okay, now so in China elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. ठीक है, चाइना में रेगुलरली हर 5 साल के बाद क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस के द्वारा व्हाट दे डू, दे आर इलेक्टिंग द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन चाइनीज लैंग्वेज
it is called as क्वांगो रेनमिन डाइबाओ दावी, है ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। सो कंट्री की पार्लियामेंट क्या कहलाती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। So what is the name of the National Assembly of China? What is the name of the National Assembly of China? So in Chinese language, it is Congo Renmin Daibao Dahui. If it is translated into English, it is what? National People's Congress. ठीक है? जैसे in case of India, इंडिया में what is the name given to the National Assembly? The Parliament of India. ठीक? Now, this National People's Congress has a power to appoint the president of the country. Okay? Now, this National People's Congress, that is the assembly of the elected representative, then appoint the president of the country. ठीक है? तो वो जो नेशनल असेंबली है वो फिर क्या करेगी? प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करेगी। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। जो नेशनल असेंबली है उसमें ऑल ओवर चाइना, पूरे चाइना से कुल मिलाकर के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स? 3000 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, उसमें से कुछ मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? आर्मी इलेक्ट करती है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, अब यहां से फ्रीनेस गड़बड़ होना शुरू हुई। अभी तक तो सब ऐसा लग रहा था कि कैसा है? फ्री इलेक्शन। सॉरी स्टूडेंट्स, इट इज 8:43, है ना? So you may have the next class after 7 minutes. So we'll wind up the session here only, beta. Okay. So we'll meet tomorrow again at the same time. So that's all for today, class students. Thank you. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.